Hello everyone, this is Afrin from Aspire Academy and this is my third lecture on reproduction in organism, which is class 12th topic. Okay, so we have already covered up the asexual method of the reproduction in the previous lecture. So today we will move on with sexual reproduction in the organism. That means how do the organism perform the reproduction in the unfavorable condition. ठीक है, अगर organisms like mostly plants they do not get favorable condition, अगर favorable environmental condition उन्हें मिलता है तो they go for asexual reproduction method. Okay, but the condition is not proper and it is not supporting the asexual reproduction method. So in that case what happened, the gametes formation take place, zygote forms and finally they perform the sexual reproduction. So in this part, we will see that what happened, what is the main characteristic feature of the sexual reproduction. In that what happened, first of all it involves the formation of the gametes. We know very well that the difference between asexual and sexual reproduction is that the gamete formation takes place in sexual reproduction. So it involves the formation of the gametes. So it involves the formation of gametes, the male gametes and the female gametes. Until and unless the gametes formation are involved, so you cannot call it the sexual reproduction. So male gamete and the female gametes fuses and the fusion of the gametes takes place and finally it will result in the formation of zygote. That means we can understand with the help of this, like if this is a male gamete and this is a female gamete. Okay, male gamete and female gamete, when they fuses, they form what? Zygote. क्या बनाता है? Zygote. That means by the process of fertilization, they form zygote and zygote can further develop into the new offspring. Okay, so involves the male and the female gametes by the two individual. That means the two individual are involved. That means since the name is sexual reproduction, so in this what happened, two parents are involved and the gametes are found and that gamete finally what they do, the fertilization take place and after fertilization the zygote is formed. So offspring produced by the fusion of the male and the female gamete into identical, they are identical to their parents. Okay, so what happened, the offspring are not two identical. You cannot say they are the clones of their parents. No, asexual reproduction में क्या होता था कि organisms अपने parent के duplicate, that means they are the clones, but here they are not identical. ठीक है, identical बिल्कुल भी नहीं होते offspring. We are not identical. We human beings also, we are not exactly the same copies of our parents. So what happened, the male and the female gamete leads to the formation of offspring and the gametes are not identical and the offspring are also not identical. So finally what happened, all sexually reproducing organism, they follow the same pattern of reproduction. The similar pattern of the reproduction can be seen in the sexually reproducing organisms. Okay, so let's see what is the main characteristics feature of sexual reproduction. In this we can see, firstly we can see it is biparental. ठीक है, सबसे पहला फीचर है biparental. So two parents are involved in this sexual reproduction, so it is biparental. ठीक है, so two parents are involved. Okay, next important feature is it is in this gametes formation takes place. ठीक है, gametes formation होता है and sexual reproduction takes time. That means it takes time. It does not occur in a very short period of time as in the asexual reproduction, and the number of the offspring produced are less in this sexual method. And next thing what is, in this sexual reproduction, the parents are not, the parents are forming the twins or the daughter cells which are not identical, to their parents. ठीक है, सो पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, क्लोन नहीं होता है. ठीक है, क्लोन इज नॉट सीन. दैट मीन्स देयर इज वेरिएशन. तो आप बोल सकते हो ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, वेरिएशन होता है. दैट इज वाई वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेम.
बिकॉज हम में वेरिएशन होता है, वी आर नॉट सिमिलर टू आवर ओन सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन जितने हैं उनसे भी हम सिमिलर नहीं होते, ना ही अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेरिएशन. Because of variation, we can see we are not the identical one, we are not the exact copy. So there is a difference between all the human beings on this earth and various animals also. So these are the characteristic features of sexual of the organisms, those who perform sexual reproduction. In that we can see gamete formation hota hai. Without gamete, the sexual reproduction cannot be undergone. Parental, two parents are involved. Okay, so the offspring are not identical. These things we have to keep in mind to understand about sexual reproduction. Now, whole lifespan, human beings from life to death, अगर हमारा lifespan को देखा जाए, हम सबका lifespan from birth to death, ठीक है, that is the lifespan. So what are the different stages and the phases that are undergone? तो हमारे पूरे लाइफ में कौन कौन से phases हमारे सामने आते हैं? First one is juvenile stage, ठीक है, पहला होता है juvenile और vegetative. So juvenile stage और vegetative stage, this is the first stage of our life. ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करो, एनिमल्स की बात करो, तो आप बोल सकते हो जुवेनाइल फेज पहला स्टेज होता है हमारा. ठीक है, बट अगर प्लांट्स की बात करोगे तो दैट इज वेजिटेटिव फेज. प्लांट्स में जो पहला स्टेज उनके लाइफ का होता है दैट इज बिफोर मैच्योरिटी, दैट इज वेजिटेटिव. एंड इन ह्यूमंस एंड एनिमल बिफोर मैच्योरेशन द स्टेज इज जुवेनाइल स्टेज. ठीक है, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ. ठीक है, दैट मीन्स इन दिस स्टेज द ऑर्गेनिजम्स गेन मैच्योरिटी एंड दे कैन फर्दर प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. ओके, उसके बाद आता है सेंसेशन और सेनेसेंट फेज भी बोल सकते हो. Either you can say senescent phase, in that what happen, aging. इस phase में क्या होता है, aging होता है. That means the organism are moving to aging. मतलब थोड़े बूढ़े होते जा रहे ऑर्गेनिजम्स, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारा इस एज में आके स्लो हो जाता है. और जो वी आर मूविंग टू डेथ, इसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं, डेथ के फेज पे. ओके, सो होल लाइफ स्पैन वी कैन सी पहला स्टेज होता है जुवेनाइल और वेजिटेटिव इन प्लांट्स. वेजिटेटिव प्लांट में, एनिमल्स में नहीं. ठीक है, सेकेंड स्टेज इज रिप्रोडक्टिव स्टेज in which the humans or animals, they are most at the maturity level to produce the young ones. And this third one is senescent phase. उसके बाद last stage, जैसे ही senescent phase end हो रहा है, it leads to death. So juvenile stage is the stage between birth to maturity. You can write it, birth से लेके maturity तक जो stage होता है that is known as juvenile. And in plants when we see it is also the same. That means the stage at which they are able to produce the gametes. So that's the gap between that stage, that is known as vegetative phase. तो ये juvenile और vegetative phase हर organisms में अलग अलग होता है. जितने भी organisms है, like हो गया, if we take the animals, cow, dog, buffalo, humans, so all are having different juvenile stage. तो जुवेलाइन स्टेज का या जुवेलाइन फेज का जो स्पैन होता है वो अलग होता है, मीन्स वेरिएशन होता है उनमें. ठीक है, सो हर ऑर्गेनिजम्स में जुवेनाइल स्टेज एक लिमिटेड टाइम के लिए मीन्स फिक्स नहीं होता है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ डिफरेंट एनिमल इज डिफरेंट. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अपना रिप्रोडक्टिव फेज होता है. सेनेसेंट आफ्टर दैट. सो रिप्रोडक्टिव फेज को आप बोल सकते हो. सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव, तो दिस वन जुवेनाइल को आप बोल सकते हो प्री रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, यू कैन ऑल्सो नेम दिस जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज एज प्री रिप्रोडक्टिव. तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये प्री रिप्रोडक्टिव है. ठीक है, सो दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज. एंड सो सेनेसेंट फेज को आप ये भी बोल सकते हो पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर दैट, आफ्टर द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी. सो यहां पे आपका हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव.
That means now the organisms are not able to reproduce after this reproductive phase. So first one pre-reproductive, then reproductive, post-reproductive. Pre-reproductive का दूसरा जो best name है that is juvenile stage and vegetative phase in the plants. And post-reproductive को आप senescent phase बोल सकते हो, ठीक है. अब आते हैं हम लोग गैमेट फॉर्मेशन. रिप्रोडक्टिव फेज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज में पहला काम क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन. जब तक गैमेट्स नहीं बनेंगे नो फर्टिलाइजेशन कैन बी डन. सो गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट्स का ट्रांसफर, ये दोनों आपका इसी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में आता है. आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन व्हाट हैपन? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. Means gametes are now they are able to fertilize, ठीक है. After that, after fertilization, जैसे fertilization over हो गया, that phase is post fertilization, ठीक है. उसके बाद आता है post fertilization. So this gamete formation and gamete transfer stage को आप बोल सकते हो pre fertilization. तो इसका दूसरा नाम आप क्या दे सकते हो? Since this is fertilization, this is post fertilization after that, तो उससे पहले आप बोल सकते हो it is प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, ठीक है. ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है. तो रिप्रोडक्टिव का सबसे पहला पार्ट हो गया गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर और प्री फर्टिलाइजेशन. सेकेंड वर्ड फर्टिलाइजेशन स्टेज एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज. सो दिस इज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ योर लाइफ स्पैन. मीन्स आपके लाइफ जो है कितने पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है. So in this way we can see human or animals या plants सबके life इस stage से undergone, means they are passing through this stage of their life. So lifespan of an organism, like we are human being, तो हम सब organisms है, ठीक है. So first one that we have seen juvenile, तो that is juvenility. That phase पहला वाला क्या है? juvenility. Then maturity आता है, person get mature, ठीक है. आफ्टर दैट, आफ्टर मैच्योरेशन व्हाट हैपन? द एजिंग स्टार्ट्स, दैट इज सेनेसेंस पीरियड, ठीक है. उसके बाद एजिंग अब स्टार्ट हो रहा है. एट दिस स्टेज द पर्सन इज मोस्टली मैच्योर, ठीक है. इससे पहले वाला ये पूरा पार्ट था हमारा जुवेनाइल वाला स्टेज में, क्योंकि बिफोर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन से पहले वाला पूरा स्टेज जुवेनालिटी है, ठीक है. उसके बाद एनिमल्स आर बीइंग मैच्योर and capable of performing reproduction, and after that when the maturity level crosses, that is senescence period, and after that the fourth one is death. Okay, so in this way the whole lifespan can be explained. So ab aate hain in plants. So now on the basis of the length of vegetative phase और रिप्रोडक्टिव फेज के बेसिस पे आप प्लांट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट वन इज एनुअल प्लांट, सेकेंड बाइनियल, थर्ड वन इज पेरिनियल. तो पहला एनुअल प्लांट जो होता है लाइफ में, एनुअल प्लांट के क्या होता है? वंस इन अ लाइफ दे आर एबल टू परफॉर्म फ्लावरिंग, ठीक है. तो वंस इन देयर लाइफ, वंस इन लाइफ मीन्स इस प्लांट के लाइफ एक सीजन में ओवर हो जाता है, ठीक है. फॉर वन सीजन, ठीक है. एक ही सीजन में इसका पूरा लाइफ ओवर हो जाता है. एग्जाम्पल इज योर वीट, ठीक है. वीट आप देखते हो, टोमेटो देखते हो, ठीक है. तो आप देखना कि वीट की फसल जब लगता है, पहले सोइंग ऑफ द सीड एंड फाइनली हार्वेस्टिंग जब होता है, फसल कट जाते हैं. अब उस प्लांट पे दोबारा न्यू प्लांट नहीं ग्रो करता है. अब जो प्रीवियस प्लांट ने, जो प्लांट ने वीट्स ग्रो किया, टोमेटो ग्रो हुआ, तो वापस वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है. मीन्स उसका लाइफ बट एक सीजन के लिए था. आफ्टर वन सीजन द लाइफ ऑफ द प्लांट इज ओवर, ठीक है. अब आ जाता है बाइनियल. इन बाइनियल व्हाट हैपन? दैट मीन्स इस प्लांट का जो लाइफ होता है फॉर 2 ईयर और 2 सीजन आप बोल सकते हो. तो फॉर 2 सीजन और 2 ईयर. तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है? फर्स्ट ईयर में दिस बाइनियल प्लांट विल गो इन देयर वेजिटेटिव फेज. पहला साल में वेजिटेटिव फेज में रहेगा ये, ठीक है. दैट मीन्स इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर, फ्रूट्स, ठीक है. अपने आप को प्रिपेयर करेगा. मीन्स पहले साल में इस प्लांट में कोई फल नहीं लगेगा. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? सेकेंड जब ईयर आएगा, मीन्स सेकेंड फेज में दे विल परफॉर्म. सेकेंड ईयर इनका रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है. सेकेंड ईयर विल बी रिप्रोडक्टिव फेज.
या सेकेंड सीजन बोलो, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा, प्लांट ने फ्लावर प्रोड्यूस किया, फ्रूट प्रोड्यूस किया, टाइम ओवर, एंड फाइनली अब वो प्लांट का डेथ हो जाएगा। आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग द डेथ ऑफ द प्लांट, मीन्स वो प्लांट 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है। एनुअल वंस इन अ लाइफ मीन्स उस पेड़ के अपने लाइफ में सिर्फ 1 साल का एक तो लाइफ होता है, उसमें से एक ही बार फ्रूटिंग होगा, आफ्टर दैट इट विल डाई, ओके। एंड बाइनियल में क्या होता है, 2 ईयर्स के लिए प्लांट सर्वाइव करते हैं, या 2 सीजन के लिए। पहला वेजिटेटिव फेज में चला जाता है, सेकेंड इज द रिप्रोडक्टिव फेज, एंड आफ्टर फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग द प्लांट कम्स टू डेथ, ठीक है। सो व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस, इट इज, यू कैन राइट द एग्जाम्पल बाइनियल प्लांट कौन से आप बोल सकते हो, कैबेज, ठीक है। कैबेज इज वन ऑफ द बाइनियल प्लांट, रेडिश ऑल्सो, ठीक है। रेडिश एंड कैबेज, दिस कम्स अंडर बाइनियल प्लांट। और एक चीज ध्यान देना कि एनुअल और बाइनियल प्लांट बोथ आर मोनोकार्पिक, ठीक है, मोनोकार्पिक होते हैं। दिस वन इज ऑल्सो मोनोकार्पिक एंड दिस वन इज ऑल्सो मोनोकार्पिक, मीन्स अपने लाइफ में एक ही बार इनमें फल लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे मैंगो पेड़ हम लोग देखते हैं, मैंगो के पेड़ में क्या देखते हो, कुछ ईयर उनका वेजिटेटिव फेज में चला जाता है, दैट मीन्स वो मैच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो कुछ समय उनका वेजिटेटिव में जाता है, और जब वो मैच्योर होते हैं, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं, तो दैट प्लांट कैन गिव फ्रूट 1 by 1, हर नेक्स्ट ईयर फ्रूट देगा, ठीक है। उस पेड़ में आप हर नेक्स्ट ईयर में देखते हो कि फल लगता है, बट ये एनुअल एक बार फल लगा उस प्लांट में, लाइफ ओवर। बाइनियल फल एक बार लगता है, बट ये प्लांट 2 साल के लिए सर्वाइव करता है, एंड आफ्टर दैट डेथ, ओके। पेरिनियल प्लांट का बेस्ट एग्जाम्पल मैंगो, ठीक है। पेरिनियल में आप देख लोगे एग्जाम्पल क्या है इसका, मैंगो। इन दिस मैंगो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड कि इनका जो वेजिटेटिव फेज होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। आफ्टर दैट दे गो टू रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद क्या होता है, ये लोग, दिस प्लांट गोज टू रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज मैच्योरिटी लेवल, और एक बार जैसे मैच्योर हो गए, अगेन एंड अगेन इट विल बी रेडी फॉर फ्रूटिंग, ओके। सो इन दिस वे वी हैव सीन कुछ एनुअल प्लांट होते हैं, कुछ बाइनियल होते, कुछ पेरिनियल भी होते हैं। सो पेरिनियल प्लांट में और एक चीज है, पहला तो हमने देखा एनुअल और बाइनियल प्लांट बोथ आर मोनोकार्पिक, अपने लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है उनमें और फ्रूटिंग, बट पेरिनियल में मेनी टाइम्स, ठीक है। सो दे कैन, सो यू कैन सिंपली राइट मोनोकार्पिक, क्या बोल सकते हो, पहला दिस थिंग व्हाट यू कैन से, दिस पेरिनियल प्लांट आर पॉलीकार्पिक, क्या होते हैं ये, पॉलीकार्पिक, मीन्स मेनी टाइम्स दे कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। We have seen annual, biennial and perennial plants. Okay, so what are perennial plant? Annual, ठीक है, एक साल में एक बार उनमें फ्रूटिंग होता है। Biennial, their lifespan is of 2 years. So now perennial, since the name is perennial, मतलब क्या है कि इनमें जो this plant lasts for more than 1 year, ठीक है, more than 1 year. So you can divide perennial plant into 2 categories, ठीक है। तो हम लोग पेरिनियल को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वन इज मोनोकार्पिक, ठीक है, फर्स्ट वन इज मोनोकार्पिक। मोनो मीन्स, व्हाट डज द टर्म मोनो मीन्स, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंस द नेम मोनोकार्पिक, मोनो मीन्स 1 and carp means fruit, means fruiting occur in this type of plant once in their lifetime, मीन्स पूरे लाइफ टाइम में एक बार उनमें फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, आफ्टर दैट दे डाई। एंड पॉलीकार्पिक, व्हाट डज द टर्म पॉलीकार्पिक मीन्स, पॉली नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स मेनी एंड कार्पिक मीन्स फ्रूट, ठीक है। इनमें जो फ्रूटिंग होती है मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, पूरे उसके लाइफ टाइम में बहुत बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कम टू द पॉइंट, फ्लावरिंग अकर वंस इन देयर लाइफ साइकिल। मोनोकार्पिक प्लांट में फ्लावरिंग जो होता है, उनमें फूल लगते हैं, फूल से फ्रूट बनते हैं, तो वो सिर्फ पूरे अपने लाइफ में एक बार,
ठीक है। वैसे प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट के लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फल और फूल होता है, आफ्टर दैट दे डाई, आफ्टर फ्रूटिंग दे डाई, ठीक है। और उनमें एक चीज स्पेशल बात यह है कि वेजिटेटिव फेज, ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव फेज का पहला वाला जो फेज है और रिप्रोडक्टिव, बोथ फेज आर वेरी मच फिक्स्ड, आर फिक्स्ड। दैट मीन्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज दोनों फिक्स्ड होता है, किसमें? मोनोकार्पिक प्लांट में। एंड लेट्स सी व्हाट आर द टाइप ऑफ द प्लांट जिसको आप मोनोकार्पिक बोल सकते हो। तो एनुअल प्लांट जो साल में एक बार, मीन्स उनका लाइफ एक साल के लिए रहता है, वैसे प्लांट लाइक राइस एंड व्हीट एक साल बोलो या एक सीजन बोलो, ठीक है। सो लाइक राइस प्लांट, एक बार उनमें फल फूल जो भी राइस आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हम लोग देखते हैं, दोबारा उस पेड़ पे अब कोई नेक्स्ट व्हीट राइस नहीं ग्रो करता है। हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग रिमूव कर देते हैं, मीन्स जो भी फील्ड होता है वो रिमूव कर दिया जाता है आफ्टर दैट। दैट मीन्स एनुअल एंड बाइनियल, रेडिश, कैबेज, इस तरह के जो पेड़ है ये सब मोनोकार्पिक होते हैं। साल मीन्स पूरे लाइफ टाइम में एक बार उनमें फ्रूट्स और फ्लावर होता है, आफ्टर दैट द प्लांट डाई, प्लांट का लाइफ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज पॉलीकार्पिक, ठीक है। सबसे बिगेस्ट थिंग है कि क्या इनमें फ्लावरिंग होता है एवरी सीजन, मीन्स हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में, हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होता है। एंड यू नो इट वो तभी होगा, दैट मीन्स जब ये इनका जुवेनाइल स्टेज खत्म होगा, दैट मीन्स जब ये मैच्योरिटी के एज पे पहुंचेंगे ऐसे प्लांट, तब उनमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होगा, एंड वो भी किसी पर्टिकुलर सीजन में, किसी पर्टिकुलर सीजन में, बट हर साल, ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज इज नॉट फिक्स्ड, यहां पे मेंशन कर दो नॉट फिक्स्ड। रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेज इन प्लांट में पॉलीकार्पिक का कोई फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल इज मैंगो एंड एप्पल प्लांट, एप्पल ट्री। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री जैसे अगर हम लोग एक बीज लगाए, न्यू बेबी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, जब पहली बार फल आएगा, ठीक है, दैट मीन्स इट हैज स्टार्टेड द रिप्रोडक्टिव फेज। उससे पहले वाला पूरा 4 या 5 साल तक जब तक उसमें फल नहीं लगते हैं, वो है वेजिटेटिव फेज, ठीक है। सीड, आपने सीड लगाया और सीड से, ठीक है, सीड से जब तक फ्लावरिंग नहीं हो तो वो बीज का स्टेज को क्या बोलोगे? दैट इज वेजिटेटिव फेज, दैट इज वेजिटेटिव फेज until the plant gains maturity, ठीक है। जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज तक नहीं पहुंचे, फ्लावरिंग स्टेज तक नहीं पहुंचे, उससे पहले तक का जो स्टेज है दैट इज वेजिटेटिव फेज, ठीक है। सो व्हाट हैपन, मैंगो प्लांट में 4 साल, एटलीस्ट मान लो 4 साल वेजिटेटिव फेज रहता है, उसके 1 साल के बाद अब फ्लावरिंग करेगा। आफ्टर दैट अब क्या होगा, हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर विल कम, फ्लावर के बाद फ्रूट्स होंगे, एंड आफ्टर दैट द प्लांट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आफ्टर फ्रूटिंग द प्लांट विल डाई, वो अब कुछ साल और, मीन्स मेनी मोर ईयर इट विल प्रोवाइड द फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। दैट मीन्स इट इज पॉलीकार्पिक, बहुत बार एक ही पेड़ में बहुत बार फल लगेंगे, बट एक पर्टिकुलर सीजन में, एंड नेक्स्ट ईयर, मतलब एक साल में अब ओवर हो गया, अब नेक्स्ट टाइम अगले साल, फिर उसके बाद वाले साल। सो दीज आर पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। मैंगो एंड एप्पल उसी कैटेगरीज में है। और व्हीट एंड राइस वेरी कॉमनली वी नो कि एक बार इनमें फल लगा उसके बाद प्लांट विल डाई। तो मोनोकार्पिक पूरे लाइफ में एक बार, और पॉलीकार्पिक लाइफ में बहुत बार वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। इन दिस वे we have seen what is the difference between monocarpic plant and polycarpic plant. Now ये perennial plant की बात थी, but अब देखो बहुत सारे और भी प्लांट है, एनुअल है, बाइनियल है, मीन्स मोनोकार्पिक है, एनुअल और बाइनियल प्लांट है, ठीक है, जिनमें क्लियर कट वेजिटेटिव फेज होता है। आई टोल्ड कि एनुअल और बाइनियल ये दोनों में क्लियर कट वेजिटेटिव फेज होगा, बट पॉलीकार्पिक में नहीं, ठीक है। बट इन पॉलीकार्पिक और पेरिनियल पॉलीकार्पिक वी कैन नॉट सी द क्लियर कट वेजिटेटिव फेज, ठीक है। बैम्बू प्लांट का एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो ये एक मोनोकार्पिक प्लांट है। बैम्बू क्या है? मोनोकार्पिक। किस तरह का पेड़ है? मोनोकार्पिक, इट इज मोनोकार्पिक। वाई मोनोकार्पिक? पूरे लाइफ में अपने
एक बार उनमें फ्रूट्स एंड फ्लावर होते हैं और इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 50 to 100 ईयर्स का होता है। मतलब पूरे 50 साल में सिर्फ एक बार उनमें फ्रूट्स एंड फ्लावर होंगे। आफ्टर दैट, एक बार जैसे ही फ्रूट्स एंड फ्लावर आ गए, उसके बाद आफ्टर दैट दे विल डाई। सो बैम्बू इज अमंग मोनोकार्पिक, ये मोनोकार्पिक प्लांट है, ठीक है। और इट इज अनयूजुअल फ्लावरिंग, बहुत डिफरेंट टाइप से फ्लावरिंग इनमें दिखता है। 50 ईयर्स मीन्स अब 1 से 49 ईयर्स वेट करो, ये वेजिटेटिव फेज होता है उनका, ठीक है। वेजिटेटिव फेज मीन्स 49 ईयर्स तक बैम्बू प्लांट डज नॉट मैच्योर, और जब वो मैच्योर होते हैं 49 ईयर्स, आफ्टर दैट 1 ईयर में वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज 50 ईयर के बाद आता है, एंड आफ्टर दैट दे प्रोवाइड द लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड आफ्टर दैट दे डाई। मीन्स 50 साल तक, 50 साल में 50 ईयर्स और 100 ईयर्स आप बोलो, उसमें एक बार उनमें फ्रूट्स एंड फ्लावर आएंगे, ओके, एंड आफ्टर दैट they'll die. Similar to that is one of the another common name, the plant common name of the plant is नीलकुरंजी, ठीक है। ये प्लांट का और एक साइंटिफिक नेम जो है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, क्या है? स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिसका कॉमन नेम है नीलकुरंजी। ये एक ऐसा पेड़ है दैट इज ऑल्सो मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, ठीक है। ये भी क्या है? मोनोकार्पिक। क्यों मोनोकार्पिक बोल रहे हैं? बिकॉज पूरे लाइफ में इनके फ्रूट्स मीन्स 12 ईयर का लाइफ स्पैन होता है, तो 12-12 साल में ही इनके फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। सो दे फ्लावर वंस इन 12 ईयर। जैसे बैम्बू 50 ईयर्स में फ्लावरिंग करेगा, वैसे ही स्ट्रॉबिलैंथस 12 ईयर्स में, ठीक है। सो दिस प्लांट इज मेनली फाउंड इन तमिलनाडु रीजन, वेस्टर्न कोस्ट, जो कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वो सब एरियाज में, वो भी हिली एरियाज में आप देखोगे लार्ज नंबर ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन इज देयर। मीन्स पीपल, बहुत दूर दूर से लोग देखने जाते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 12 ईयर्स में, एक तो मीन्स 1 से लेके 12 ईयर्स तक इनका, 11 ईयर्स तक इनका वेजिटेटिव फेज होता है, और जब ये 12th वाले ईयर्स में पहुंचते हैं तब उनमें फ्लावर्स और फ्रूट लगता है। आफ्टर दैट द प्लांट अगेन डाई। मीन्स पूरे 12 साल में एक बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगा, आफ्टर दैट द प्लांट विल डाई, देन अगेन यू कैन कॉल इट मोनोकार्पिक। मीन्स पूरे लाइफ में एक बार फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग हो रहा है। एंड केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब एरियाज में होते हैं। पहली बार ये फ्लावर ने फ्रूटिंग कब किया था? 2006। तो 2006 में पहली बार इसमें फ्लावर्स देखे गए थे। आफ्टर दैट यू कैन इमेजिन, काउंट 2006 से 12 ईयर्स ऐड कर लो, 2018 वी हैव सीन लास्ट बार। 2018 में नीलकुरंजी, दिस फ्लावर्स वाज ब्लूमिंग इन द हिली एरिया ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। तो पूरा हिली एरिया जो है कवर्ड हो गया था इस तरह के ब्लू फ्लावर से। कैसा फ्लावर होता है इनका? ब्लू। सो इस ब्लू फ्लावर से पूरा हिली एरिया कवर अप हो गया था। एंड अगेन 12 ईयर्स में यहाँ पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा, अगेन द प्लांट विल डाई, फिर द न्यू प्लांट विल ग्रो, ठीक है। सो इन दिस वे we can say that bamboo and Neelkuranji both are monocarpic plant. Now let's see what is again based on seasonality, ठीक है। ये तो प्लांट की बात हमने की, अब एनिमल्स में आ जाते हैं। सो इन एनिमल्स व्हाट हैपन, बेस्ड ऑन सीजन के बेसिस पे अगर आप रिप्रोडक्शन को कैटेगराइज करोगे, सो देयर आर वेरियस एनिमल्स हु आर सीजनल ब्रीडर, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन में वो ब्रीड करते हैं। एंड नेक्स्ट अनदर इज कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। दैट मीन्स देर आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी में आप सीजन के वाइज देखोगे कि ब्रीडिंग कर रहे हैं, एंड इन नेक्स्ट होल थ्रू आउट द ईयर दे ब्रीड। सो वी कैन कैटेगराइज देम लाइक सीजनल ब्रीडर। कैसे ऑर्गेनिजम्स है? तो ब्रीड एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, पूरे साल में, लाइक 12 मंथ होल ईयर इज, तो पूरे साल में एक पर्टिकुलर सीजन आएगा जब वो ब्रीड करने के कैपेबल होंगे। सो दैट मीन्स वो भी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन जब फेवरेबल मिले, एनवायरमेंट सपोर्ट करे, देन ओनली दे विल ब्रीड। तो उनका जो सीजन होता है कोई फिक्स होता है, ओके। एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर वी कैन सी, इनमें क्या है कि थ्रू आउट द ईयर
of their lifespan, पूरे life में throughout the year they can undergo the breeding process. Okay. अगेन सीजनल ब्रीडर में क्या होता है, दे प्रोड्यूस द यंग वंस इन फेवरेबल कंडीशन. तो ये जो कोई पर्टिकुलर स्टेज होगा उनके होल ईयर में, पूरे साल में कोई एक पर्टिकुलर सीजन होगा जहाँ पे दे विल गेट द फेवरेबल कंडीशन जो कि सपोर्ट करेगा ब्रीडिंग को, एंड दे विल प्रोड्यूस देयर यंग वंस. तो इनके यंग वंस कोई पर्टिकुलर सीजन में, लाइक वी कैन सी बफेलो, काउ, लिजर्ड, इनका एक फिक्स सीजन होता है. लाइक लिजर्ड, we can see lizards, they are breeding in generally summer season we can see. ठीक है, तो वैसे ही birds का भी December and all we cannot see them breeding, but इनका जो breeding season होता है नियर अबाउट समर वाले समय में होता है. सो एक पर्टिकुलर सीजन में वो ब्रीड करते हैं, नॉट इन होल ईयर. बट हियर यू कैन सी कंटिन्यूस ब्रीडर, दे रिप्रोड्यूसेस थ्रू आउट द ईयर सिंस आफ्टर मैच्योरिटी. ऐसा नहीं है कि जुवेनाइल स्टेज में. That means after gaining the maturity, they can reproduce or breed in any of the month, we can say, and they have parental care. तो ऐसा क्या special होता है continuous breeder में that will allow them to produce the young ones without any difficulty? So that is they have parental care to look after the young ones. ठीक है, तो इनके पास parental care होता है जो कि हेल्प करता है easily for the survival of the organism. Means जो young ones होंगे उनके सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं आएगा. सो दे हैव द पेरेंटल केयर टू सेव देयर प्रोजेनी फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन. अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक humans, if the young ones are grown or been born in December, it is too cold, but we are having several mechanisms. We are having the different types of clothes to protect us from the cold climate. So these organisms can breed in any of the month of the year. Examples can be cattle, poultry, rabbit. ठीक है, birds that are in close captivity, that means poultry. ठीक है, पोल्ट्री वाले जो बर्ड्स है जो कि क्लोज कैप्टिविटी में हम उन्हें एक जगह पे क्लोज करके रखते हैं, उन्हें प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर अलाउड टू ब्रीड. दैट मीन्स इन कैप्टिविटी व्हाट हैपन, दे आर अलाउड टू ब्रीड. तो उस कंडीशन में बर्ड्स भी कंटिन्यूस ब्रीडर में आता है. अदरवाइज बर्ड शुड बी इन दिस सीजनल ब्रीडर. अगर नेचुरल वे से बर्ड ब्रीड करते हैं तो दे शुड बी इन सीजनल ब्रीडर कैटेगरी. बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग देम क्लोज कैप्टिविटी और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट थ्रू वेरियस टेक्निक्स, अगर हम लोग उनमें ब्रीडिंग अलाउ करते हैं, सो दैट इज इन दैट केस दे आर कंटिन्यूस ब्रीडर. ओके, सो primates, among the primates, all the monkeys, apes, chimpanzee, human beings, we all are included. ठीक है, so we all are included in this category. So we are also continuous breeder. Okay, because there is no particular season, particular month of the year for breeding. So since the condition let it be unfavorable, but we are having various techniques and parental care also, so that the young ones will be preserved and protected from the harsh environment. So in this case we can see the two different types of the breeding occurs in the organism. So seasonal breeder are cow, buffalo, frogs, lizard, birds. And in continuous breeding we can say birds are also there, but in captivity. Those birds which are in captivity, they can be counted as continuous breeder. Cattle, poultry, rabbits, humans, monkey, apes, all are continuous breeder. Okay, so now we can see the reproduction during the reproductive phase, what happened in placental mammal. So we are talking about the placental mammal here. The reproductive phase in the placental mammal, in that what happened in the female reproductive system, there are many cyclic changes. Okay, there is a cyclic changes which takes place, and finally that changes are undergone in the ovary, in the hormones and endometrium. तो इन सब चीज़ों में changes आता है during the cyclic process. During the cyclic process of reproductive phase, the changes arises in ovary, hormonal changes also, and changes in the endometrium, which leads to the finally two stages we can see. तो इस तरह से दो तरह के cycles होते हैं. One is estrous cycle and one is the menstruous cycle. ठीक है, तो estrous cycle we can see, these are can be seen in placental mammal. ये कहाँ पे मिलेगा? जिस भी mammals का placenta होगा
So in that placental mammals, we can see this estrus and menstruous both the cycle. Okay, so next what is that in estrus cycle we can see the organisms, those who are seasonal breeder, ऐसे animals or you can say ऐसे mammals, ठीक है, the mammals those who are seasonal breeder, उनमें आप देखोगे कि estrus cycle होता है, ठीक है. And next what happened in the estrus cycle, उसके characteristic feature है the endometrium or the lining of the placenta that breaks but it is reabsorbed by the by the estrus cycle में क्या होता है, the endometrium का reabsorbment होता है, means it does not lose from the body. And during the estrus cycle what happened, the body temperature of the organism increases during the particular phase of ovulation. ओव्यूलेशन के समय क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म या उस एनिमल का इंक्रीज करता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. बट इन हियर वी कैन सी देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर. वी कैन कंपेयर, बट लेट्स गो थ्रू द estrus cycle once, and they do not involve the loss of the blood. Since the endometrium is been reabsorbed, उनमें reabsorption होता है endometrium break करने के बाद, इसलिए it does not involve any loss of the blood. So all the non-primates, dog and cow, ठीक है, primates तो humans, ape, chimpanzee, these are primates, and apart from that दूसरे जितने भी mammals है वो non primates में आते हैं. cow, dog examples we can take, ठीक है. तो इनमें क्या होता है, estrus cycle होता है. ये भी प्लासेंटल मैमल है, इनके हॉर्मोन्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है, ओवरी में चेंजेस होते हैं, एंड एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड इट इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड इट डज नॉट लूज फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ब्लड इज नॉट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. एंड लेट्स सी व्हाट हैपन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो व्हाट हैपन अगेन, इट टेक प्लेस इन द प्लासेंटल मैमल. जितने भी मैमल्स है द प्लासेंटल मैमल्स, उसमें आप देखोगे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस कैन बी सीन. And one of the characteristic feature is that endometrium breaks and it is discarded out of the body. ठीक है, endometrium की जो linings होती है they break and it is released out of the body, and we can see the body temperature do not changes during ovulation. As you can see in estrus cycle, the organism, seasonal breeder organism या seasonal breeder mammals जिसमें estrus cycle होती है उनमें body temperature increase करता है, but the organisms or the mammals जिनमें menstrual cycle होता है उनमें body temperature does not rises, it remains same. Okay, it involves the loss of the blood. Why the loss of the blood? Because of the breakage of the endometrium, and as the endometrium breaks and it is removed out of the body, so it involves the loss of the blood. Okay, then what happened? Examples. What are the examples that we can see जिनमें menstrual cycle होता है? Primates. All the primates, that is human, apes, chimpanzee. So ये सब primates में होते हैं. तो menstrual cycle is a characteristic feature जो है ये primates का है. ये आपको सिर्फ primates में मिलेंगे और ये आपको non primates में मिलेंगे. Okay, so we have to understand कि these are the characteristics, most important feature कि इनमें endometrium break करता तो है but it is reabsorbed, और इनमें endometrium break करता है but it is discarded, thrown out of the body. So here it involves the loss of the blood and here it do not involve the loss of the blood. Okay, यहाँ पे loss of the blood नहीं होता है, और it is seen in the non-primates and this you can see in primates. The menstrual cycle is a characteristic feature of primates. So these are the few differences between both the cycles, and now we can see, since we have seen the end of the reproductive phase can be considered as one of the parameter जिसमें आप देखोगे कि old age अब start होता है. Since reproductive stage over हो रहा है means old age starting. So first stage we have seen juvenile, the vegetative phase. अगर plant में है तो vegetative, तो juvenile के बाद आता है reproductive phase, reproductive के बाद आता है senescent phase, उसके बाद आता है death. ठीक है, इसके बाद क्या कौन सा phase है? Death. That means senescence के बाद directly the people comes to the age of death, और उसके बाद death निश्चित है. ठीक है, so the end of the reproductive मतलब reproductive खत्म हो रहा है मतलब senescent start हो रहा है, और senescent का खत्म होना that means the death of the individual.
So these changes in the body, देखो देर आर द चेंजेस इन द बॉडी. तो रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद क्या होता है, मीन्स मैच्योरिटी लेवल गोज डाउन. तो अब क्या होता है, द बॉडी बिकम्स, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है. ऑर्गन फेलियर मीन्स ऑर्गन सब उतने अच्छे से वर्क नहीं करते. तो ऑर्गन फेलियर इज वन ऑफ द अनदर थिंग. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है that you should understand that after the reproductive stage we can see organ failure, then metabolism rate slows down. ठीक है, so during the lifespan the senescent is the last phase, क्योंकि इस last phase के बाद death होगा. So old age ultimately leads to death. ठीक है, in both the animals and plants में भी और animals में भी hormones are responsible for the transition between the phase. So juvenile से reproductive stage में अगर organisms पहुंच रहे हैं, reproductive से senescent, तो इसमें hormones बहुत important role play करता है. ठीक है, since the organisms are attaining reproductive stage, they are gaining maturity, they are giving birth to the young ones. So it is all because of the hormones and many more environmental conditions that support them. So बिना hormone के this level cannot be crossed, means ये एक level से दूसरे phase तक organisms cannot pass without the hormonal changes. ठीक है, so next we can see the interaction between the hormones and certain environmental factors that regulates the reproductive phase and associated behavior. So reproductive phase में जितने भी events चलते हैं, means जो steps है, various changes occur, behavioral changes. ठीक है, so all that changes is because of the hormones. ठीक है, so these were the things that we have read about the sexual reproduction in the animals and plants. Now we have came to the end of this. Next part we will cover what are the steps involved in sexual reproduction. That is another part. ठीक है, वो एक अपने आप में एक complete topic है. So we will continue in the next lecture. So thank you.